उस पर पाकिस्तान ने क्या JNK की पलटन आई है इधर, उसका कुछ उधर डिस्प्यूट था, उसने अटैक कर दिया 2 पलटनों ब्रिगेड के साथ। वो हमारी पलटन की कंपनी लीड थी, उसने उनके पता नहीं 300 आदमी या 400 मार दिए, ब्रिगेड ही खत्म हो गया। और वो जो MMG उसने शाम तक उस पुल के ऊपर फायर करते रहे। वो 300 गाड़ी 6000 पाकिस्तानियों के साथ खड़ी बैठी है। उधर से 10 आदमी कर्नल नारायण सिंह के साथ, इधर से ये 5 आदमी MMG के साथ, पूरा दिन बचा दिया। मैं एक छोटा सा एक सिटानी गांव से हूं, जहां पर आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी मैंने बनवा ली है अपने गांव में, और बहुत अच्छी सड़क भी जा रही है आज, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट रोड्स इन दी विलेजेस। तो person not here, but in Europe also people used to talk about his charm. But as a person, sir, as a Maharaja, how he was different compared to other Maharajas of that time? नेहरू तो ये भी कहने के काबिल नहीं थे, उन्होंने बोल दिया पटेल को कि आप हैंडल करो, इनसे बोलो। उनको नहीं पता था, जब ये पता लगा तो बहुत दुखी हुए, वो बहुत दुखी हुए। मैं गया उनके पास 1954 में, वो तो 1949 में गए थे। 5 साल बाद जब मैं ADC आया 1954 में, मार्च में, डॉक्टर करण सिंह जी सदर रियासत से मैं ADC गया। Welcome to another episode of Telecast The Tavi Tales. Today's episode holds special significance for two reasons. First, it's a Republic Day, wishing all Indians a very happy Republic Day. On this momentous day, let's unite with pride and reaffirm our pledge to strengthen our great nation every day. Second, we are deeply honored to have with us a distinguished guest, a man who has played a crucial role in safeguarding our borders, ensuring that we continue to celebrate our national festivals with joy and pride the way we are doing. We are privileged to welcome Major General Govardhan Singh Jamwal, a true Dogra icon whose name requires no introduction. General Jamwal served in the state forces of our revered Maharaja Hari Singh Ji, personally commissioned by the Maharaja in 1947. He remains the first and the last general from the Indian Army to have transitioned from state forces. His illustrious military career spans all the significant wars in the Indian history, starting with the 1947-48 Jammu and Kashmir conflict. He also served as a military secretary to the President of India. A pride of the Dogra community, his list of awards and recognition are so extensive that if we were to recount them, the podcast would never end. Welcome, sir, and a very, very happy Republic Day to you, sir. वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे सर। और तवी टेल्स के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस स्पेशल गणतंत्र दिवस में हम उन शख्सियत को आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 1950 को अपनी आंखों से देखा है। तो इससे बड़ा सौभाग्य तवी टेल्स के लिए नहीं हो सकता। और hope that sir your presence today adds a special shine to this national festival, and we look forward to delve into many aspects of your extraordinary life, some known to public and some perhaps less so. तो सर हम बात करते हैं आपकी लाइफ जर्नी की। तो आप राया सुचैनी गांव है, यहाँ पे जम्मू के पास ही है, विजयपुर के पास। आप वहाँ यू बिलोंग टू दैट प्लेस। तो आप आर्मी में कैसे आए, और क्या आपकी फैमिली में कोई ट्रेडिशन था मिलिट्री सर्विस का, या कुछ पर्टिकुलर रीजन था कि आप इंस्पायर हुए आर्मी को ज्वाइन करने के लिए जब आपने आर्मी को ज्वाइन किया? Well, thank you very much. Firstly, I am honored when people like you considered me for this podcast for the Republic Day.
and that too in my Dogra land, to the Dogras. I feel really very honored. Thank you very much, and I wish you all the best. This is a very good initiative. तभी जो नाम भी बड़ा अच्छा दिया आपने, एंड मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में शायद इतना पॉपुलर होगा कि अपने लोग नहीं, बाहर के लोग भी चाहेंगे सुनना कि डोगरास ने क्या कमाल किया हुआ है। जो ये जो रियासत बनाई है, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, अब 565 स्टेट्स की, और वो भी अक्रॉस द हिमालयास, वहां लद्दाख, कहाँ गिलगित बल्तिस्तान, जिसको पूरे हिंदुस्तान के लिए संभालना मुश्किल हो गया है, वो हमारे बुजुर्गों ने बनाया है। और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कैसे बनाया है। जोरावर सिंह कौन था जिसने महाराजा गुलाब सिंह की इतनी मदद की और कहाँ पहुंचाया, और आखिर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह कौन था जिसने महाराजा हरि सिंह जी को इतना टाइम दिया कि वो अंग्रेजों को फेल कर दिया और रियासत को बचा के एक सीट कर लिया। वो कहानी मैं जानता हूँ, मेरे सामने हुई है। और मुझे उम्मीद है कि हम आपके जरिए तभी जो भी आपने अभी शुरू किया है, इसके जरिए लोगों को हम असलियत बताएंगे। असलियत क्या है, क्योंकि असलियत छुपा दी गई है, नहीं बताई हुई है, और अभी तक किताबों में भी नहीं आई है। और जिन किताबों में है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि वो किताबें ही नहीं पब्लिश हुई हैं। अगर पब्लिश हुई हैं तो रिलीज नहीं हुई है। इतना जुल्म हुआ है ये डोगरों के साथ। वो अभी निकलेगा, हम इसके बाद निकालेंगे जो किसी के पास नहीं है। आज तक मैंने बहुत पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत, पर किसी ने वो चीज उस तरीके से नहीं निकाली है जिस तरीके से निकालनी चाहिए थी, जो असलियत है। और मुझे वो आपके आपके द्वारा ही होना था, शायद इसीलिए इंतजार हो रहा था। ये तो हो गया आपके पॉडकास्ट के बारे में। अब रही मेरी बात। मैं एक छोटा सा एक सिटानी गांव से हूँ, जहां पर आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी मैंने बनवा ली है अपने गांव में, और बहुत अच्छी सड़क भी जा रही है। आई प्रोबली वन ऑफ द बेस्ट रोड्स इन दी विलेजेस। तो मैं उस गांव का रहने वाला हूँ। 1947 में इतनी बुरी हालत थी इस इलाके में जहां हम बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं था क्या होने वाला है। मार्च अप्रैल फरवरी फरवरी से ही शुरू हो गया था। सडनली मार्च में एक पता लगा कि फौज में जम्मू कश्मीर की रियासत में लेफ्टिनेंट्स की भर्ती होगी। उसके लिए एप्लीकेशंस थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स जाती थी, और डिप्टी कमिश्नर्स इंटरव्यू लेते थे, और वो रिकमेंड करते थे। अगर वो रिकमेंड नहीं करते तो नहीं जा सकते थे। तो बड़ा बड़ा प्रोसीजर था, मुझे नहीं मालूम था। मैंने बीए का एग्जाम दे दिया अप्रैल में। कुछ नहीं पता था आगे क्या होगा। लाहौर हमारी यूनिवर्सिटी थी। कभी सोचता था कि एलएलबी करने लाहौर जाऊंगा, क्योंकि पिताजी इसमें जुडिशरी में थे, उनका ख्याल था। तो मैं बीए का इम्तिहान दे के सोच रहा था। तो ये मेरा एक फ्रेंड जो बाद में तहसीलदार बना या असिस्टेंट कमिश्नर बना, वो फार्म ले आया और मुझे कहा भरो जी। मुझे नहीं पता था। तो मेरे बल्कि उसने बैठ के मेरा फॉर्म भी भर के दे दिया, मेरे से साइन करवा के। तो ये कहना कि मेरी मुझे मोटिवेशन कहाँ से हुई, मोटिवेशन इसके बाद हुई। फॉर्म भरने के बाद सोचा कि फौज में जाना। मेरे दोनों, मेरे दादाजी भी फौज में थे, मेरे तातो जी भी फौज में थे, मेरे चाचा जी भी फौज में थे। पिताजी नहीं थे, वो जुडिशरी में थे। और वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के साथ एक ही स्कूल में पढ़े थे। वो सीनियर थे, वो थोड़ा जूनियर। ब्रिगेडियर साहब जूनियर थे एज में भी और क्लास में भी। तो मुझे वो सब पता था, मगर उस वक्त तक कोई जगह भी नहीं थी इस वास्ते ये कहना कि मैं अपने मिलिट्री माइंड से गया नहीं। उसने दरख्वास्त दे दी। वो
डिप्टी कमिश्नर ने बुलाया, इंटरव्यू ली और बोला मैंने रिकमेंड कर दिया है। हाँ, उसके बाद ख्याल आ गया, तब हमने सोचना शुरू किया। वीडी राजेंद्र सिंह मेरे गांव के पास थे, जनरल बाज सिंह मेरे दूसरे गांव में थे। बल्कि जनरल बाज सिंह बड़ोड़ी में थे और मैं स्मैलपुर पढ़ के जब आता था तो मेरा जो बाज सिंह जी का पोतरा था वो मेरा क्लास फेलो था। और आके आना उधर ही खाना वगैरह खाना। तो जनरल बाज सिंह की जर्नैलनी के हमने पाँव भी छुए मैंने। वो पाँव छुआते नहीं थे, दूर से बोलती थी वहीं से ठीक है। बहुत पूजा पाठ करती थी। वो कहते हैं लकड़ी भी धो करके लगाती थी अपने उसमें चूल्हे में। तो मैंने सब देखा है। तो फौजी यही समझो, जब मैं भर्ती हो गया तो उसके बाद पक्का फौजी था। सर बहुत ही बढ़िया आपने डिस्क्रिप्शन दिया उस टाइम का। आई थिंक जब तक आप बोल रहे थे सर, तो आंखों के सामने सारा उस समय का आ चुका था कि कैसे आप पढ़ाई कर रहे थे सर। सर आप प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज से पढ़े हैं शायद। तो सर अगला मेरे से आपसे बस एक ये बड़ा क्वेश्चन है सर, कि आप पूरी हमारी डोगरा कम्युनिटी में एक बहुत ही आइकॉनिक फिगर हैं। आज की डेट में अगर किसी अ, डोगरा बच्चे को बताना हो कि आपको आपका आइडियल कौन है, तो हम सबके मुंह से पहला वो निकलता है कि मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी। आप हमारे एक लिविंग लेजेंड हैं। आपने सर बहुत सारी लड़ाइयां देखी हैं। आपने सर बहुत सारी चेंजेस देखी हैं, स्टेट फोर्सेस टू इंडियन आर्मी, स्टेट टू लेट्स से वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोरियस इन द कंट्री विच इज इंडिया। सर हम सब आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन सर मेरा ये है आपसे, आपकी इंस्पिरेशन कौन है सर, जो आपको मोटिवेट करता है at every age and every phase of your life to contribute to do and everything for डोगरा कम्युनिटी? आपकी इंस्पिरेशन कौन है सर? ये अच्छा सवाल है। अब मेरी उम्र 97 के करीब होने वाली है। और ये ठीक कहा आपने कि मुझे डोगरा में और डोगरा हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। वो इसलिए है कि मैंने डोगरों के साथ अन्याय होता देखा है। पहले दिन से ही अन्याय होता देखा है और गलत बातें होती देखी हैं, जिसकी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। किस तरह से रियासत पर अटैक हुआ वो मैंने देखा है। मैंने श्रीनगर था उस दिन, पीर राजेंद्र सिंह जी के पास भी मैं गया। जून में उनके घर बैठा, उनसे मिला, उनके पाँव में नीचे बैठ गया। 1 घंटा बात करी उन्होंने, जब मैं लेफ्टिनेंट नहीं बना था। तो वह मैंने उनको भी देखा हुआ है। और जो अटैक हुआ हमारे ऊपर वो भी गलत हुआ। वो अंग्रेजों ने अटैक करवाया हमारे पर, पाकिस्तान को पता भी नहीं था। और अंग्रेजों का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसे कमांडर इन चीफ कहते हैं, फ्रैंक मेजरवी, वो अंग्रेज था। उसने बनाया वो ऑर्डर भी। और पाकिस्तान के फोर्सेस इस्तेमाल हुए, नाम कबाली दिया ट्राइबल्स। इतनी बदमाशी की इन्होंने, हमें उस वक्त पता नहीं था, लेकिन आस्ता आस्ता बाद में हमें पता लग गया। बल्कि मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाऊं तो शायद 22 बाईस 2022 में मुझे एक टेलीफोन आया दिल्ली से, वो बरखा दत्त का, कि हम इस दफा 22 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाना चाहते हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं जी वो गलती हो गई थी। और वो वाकई ही ब्लैक डे था, जब अंग्रेजों ने या पाकिस्तानियों ने धोखे से अटैक किया था मुजफ्फराबाद में, तो इसलिए हम उसको ब्लैक डे कहेंगे। मैंने कहा बहुत खुशी हुई कि आपको भी बस समझ आई कि असलियत क्या थी। तो वो कहती मैं आपकी इंटरव्यू करनी है। मैं कहा करिए। तो इंटरव्यू से पहले मैंने उसको बात एक बताई
मैंने कहा मैं 22 तारीख बदामी बाग कंटोनमेंट में, यहाँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह रह रहे थे, उनसे 500 गज था मेरा ट्रेनिंग स्कूल। और जब 22 को अटैक हुआ, 21-22 को, और 22 शाम को ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह चले गए फौज लेके, तो दूसरे तीसरे दिन वो जैसे आगे बढ़ रहे थे तो एक खबर निकली कि कुछ पाकिस्तानी या ट्राइबल्स बदामी बाग कंटोनमेंट में आ रहे हैं, और वो शायद वहां ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर या कंटोनमेंट में झेलम दरिया की तरफ से हमला कर दें। तो हमको उन्होंने बोला कि आप तैयार हो जाओ। हम फायर भी नहीं किया था। तो 21-22 की रात को क्या हुआ मुजफ्फराबाद में, उसका हमें पता वहीं लग गया दूसरे दिन, क्योंकि उसी के अफसर भी, जवान भी हमारे साथ थे वहां बैठे हुए, उसी पलटन के। वो बता रहे थे वहां कौन है क्या है। वहां जो कुछ हुआ, मैंने बरखा दत्त को ये बताया कि 23 तारीख को या 24 को मुनीर हुसैन एक लेफ्टिनेंट थे, वो नौशहरा के, अब वो बाद में पाकिस्तान चले गए, वो भी मेरे कमरे में सोए थे। तो मैंने बरखा को बताया, वहां देखो 21-22 की रात को मुजफ्फराबाद में जो हुआ उसका तुम्हें पता है, जिसके लिए 22 अक्टूबर कह रही है तू। सर, आप जो आपने महाराजा हरी सिंह जी के अंडर यू आर पार्ट ऑफ स्टेट फोर्सेस, तो वो कैसा गौरवान्वित पल था जब आपको महाराजा हरी सिंह जी ने, जो कि एक इतनी हिस्टोरिकल और आइकॉनिक फिगर है, अब हमारे लास्ट महाराजा रहे हैं, तो उस समय पे आप रोशनी डालिए कि आपको कैसा महसूस हुआ कि जब इतने बड़े महाराजा ने आपको स्टेट फोर्सेस में कमीशन किया। क्या उस मूवमेंट को आप शेयर करेंगे हमारे साथ? हाँ, बिल्कुल, ये भी आपने अच्छा पूछा। महाराजा हरि सिंह जी को हमने कभी, मैंने देखा था क्योंकि मैं राजपूत स्कूल में पढ़ता था, उनका जन्मदिन मनाते थे, और कभी कभी हम पैलेस जाके उनको, सारा स्कूल जाता था, गाते थे सारे ऊंचा रहे झंडा हमारा। तो हमने देखा हुआ था हर उनके बर्थडे पर। बल्कि डॉक्टर करण सिंह युवराज थे, इनका बर्थडे भी हम मनाते थे उस स्कूल में, हमें लड्डू मिलते थे। तो महाराज हरि सिंह की मूर्ति भी देखते थे, महाराज हरि सिंह को भी एक बार दो बार देखा था, वरना तो उन दिनों महाराज हरि सिंह जी को देखना तो मुश्किल था। पर ये भी ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, इतना बड़ा फेस था, बड़ी बड़ी आंखें थी। तो उनको भी एहसास था कि ये, मैं 19 साल का भी नहीं था, तो 19 से कम था। तो उनको एहसास था कि ये कैडेट गांव से आते हैं बच्चे, घबरा ना जाए मुझे देख के। तो बड़ी काली एनक लगाई थी उन्होंने, और हमारी तरफ कभी नहीं देखा उन्होंने, वो उधर ही देखते रहते, और कभी सवाल भी नहीं पूछा, सुनते रहते थे, देखते थे। क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर बनना बहुत प्रेस्टिजियस बात थी रियासत में, क्योंकि उस वक्त भी 200 लोगों की एप्लीकेशंस चली थी, डिप्टी कमिश्नरों ने रिकमेंड की थी, ऊपर सिर्फ 10 पास हुए, जिनकी पहली इंटरव्यू अगस्त में हुई, शायद 15 अगस्त के पीछे ही। 15 अगस्त तो हम आजाद हो गए, स्टेट स्टेट मुल्क हो गया, आजाद मुल्क हो गया। तो हमारी पहली इंटरव्यू 15 अगस्त के आगे पीछे हुई, और वो हमने देखा, स्कॉट एक तरफ बैठा था, आरसी काक प्राइम मिनिस्टर था, वो दूसरी। अंदाजा लगाओ किस किस्म का बोर्ड था वो। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनना हो तो मेजर होता है कुल देखने वाला, उनका बोर्ड का इंचार्ज। हमारे बोर्ड के महाराज हरि सिंह थे, और प्राइम मिनिस्टर थे स्टेट के आरसी काक, और दूसरी तरफ जनरल एच एल स्कॉट था, मेजर जनरल। वो सवाल स्कॉट पूछता था हमें,
और जवाब हम देते थे तो महाराजा साहब देखते रहते थे। तो काक साहब का भी कोई सवाल पूछ लिया, नहीं तो जनरली स्कॉट सवाल पूछता, बातचीत होती थी। तो ये वाकई हम हमको बोला गया था कि घबराना नहीं। महाराज साहब की बहुत पर्सनैलिटी ऐसी थी, उनका फेस बहुत बड़ा फेस था, बड़े खूबसूरत थे। कहते हैं वो इंडिया में सबसे खूबसूरत महाराज वही थे। तो ये आपने ठीक कहा। दो इंटरव्यू दी, एक अगस्त में, एक 10 सितंबर, फाइनल इंटरव्यू। और 10 हम पास हो गए, कमीशन हो गए। उन्होंने लंच खिलाया हमें। गुलाब भवन में इंटरव्यू हुई, दोनों इंटरव्यू गुलाब भवन में हुई, श्रीनगर पैलेस में। अगस्त वाली हुई वायसरीगल लॉज था एक, जहाँ वायसराय ठहरते थे। और जो फाइनल थी वो 7 चिनार का दरख्त है बाहर, उसके ऊपर थड़ा, वहां हुई। और फिर अंदर चांदी के थालों में खाना खिलाया हमको, लंच खिलाया। क्योंकि वो बहुत फौज को बहुत तरजीह भी देते थे और समझते थे कि इनके ऊपर सब डिपेंड है, उनकी लाइफ इनके ऊपर डिपेंड है। एडीसी वहां से जाते थे, देश की भी प्रोटेक्शन, उनकी भी प्रोटेक्शन, मुल्क के भी लोग। तो उस लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू समझी जाती थी। सर, जो विकास ने डॉक्टर विकास ने पूछा उसी के साथ एक मिलता जुलता मेरा एक सवाल है। अ, सर, और साथ में पीछे महाराजा साहब जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे थे, तो मैं आपके पीछे लगे हुई ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी और साथ में महाराजा जो है, और जनरल जोरावर सिंह, तीनों की फोटो भी लगी हुई हैं, जो हम सब डोगरों को एक गर्व से भर देते हैं। और साथ में सर आप तो हैं ही, तो चार लोग इकट्ठे हम एक फ्रेम में देख पा रहे हैं, जो डोगरा कम्युनिटी के लिए हमेशा एक प्राइड है। सर, मेरा आपसे ये एक पूछना था कि आपने बहुत क्लोजली, लाइक 47 में जब आप हुए तो उसी टाइम पे जंग का माहौल भी हो गया। महाराजा को आपने काफी क्लोजली देखा, और उसके बाद भी आप महाराजा से कांटेक्ट में रहे। सर, हमारे महाराजा और उस समय उनके जो कंटेम्पररी थे, उनमें सर क्या आपको एक डिफरेंस दिखता है, जो आप सर बताना चाहते हैं सभी लोगों को कि हमारे महाराजा कैसे डिफरेंट थे? देखने में तो खूबसूरत थे ही, आपने कहा, एंड ही वाज द मोस्ट हैंडसम पर्सन, नॉट हियर बट इन यूरोप आल्सो पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट हिज चार्म। बट एज ए पर्सन सर, एज ए महाराजा, हाउ ही वाज डिफरेंट कंपेयर टू अदर महाराजाज ऑफ दैट टाइम? बहुत अच्छा। मैंने महाराजा हरि सिंह जी के बारे में बहुत स्टडी की है। कमीशन उन्होंने किया, उस वक्त मुल्क के हालात बहुत ही खराब थे। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस दिन हमारी इंटरव्यू हो रही थी 10 सितंबर को, तब तक 5-6 करोड़ हिंदुस्तान से पाकिस्तान और 5-6 करोड़ पाकिस्तान से हिंदुस्तान लोग आ चुके थे। 11-12 लाख मर चुके थे। कई लाखों कन्वर्ट हो गए थे। औरतें आई नहीं थी, रख ली उन्होंने। ये हमें पता था। 10 सितंबर को जब मैं कमीशन हो गया तो 11 को मैं अपने गांव आया सुचानी। तो देखा 11 या 12 रात को बच्चे, औरतें जंगल में चली जा रही थी। मैंने कहा क्या होता है? कहते अभी फायर होगा, पठान आए हुए हैं, वो फायर करेंगे, टक डम राइफल का। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, फौजी हैं या जवान लोग हैं, वो अपने हथियार लेके गांव के चारों तरफ बैठ जाते हैं। फायर होना शुरू हो जाएगा। 9-10 बजे फायर होना शुरू हो गया। पठान ने राइफल टक डम, मेरे घर में ऊपर कई गोलियां टाक टाक पक्के मकान पर लग रही थी। तो मैंने कहा ये कितने कहाँ तक पहुंच गए हैं। उसमें ये था, पाकिस्तानी आते थे और वहां लोकल जो थे वो रास्ते बताते थे, और वो हमारे घरों में तो नहीं ले आते थे, डरते थे। लेकिन उनको पता था कौन सी जगह से मेरे घर में, गुड़ा में, शायद सनूरा में, हीरानगर में, राइट अप टू कठुआ,
अंदर मेरा 15 16 18 किलोमीटर अंदर है बॉर्डर से, लेकिन वहां पहुंच गए थे 11 सितंबर को, और वो फायर हो रहा था बेशुमार। और उसके साथ पाकिस्तान क्या, एक बत्तियां भेजी हुई थी उन्होंने, जैसे वेरी लाइट होता है या आतिशबाजी होती है, इस तरह से एक बत्ती वहां सामने से ही निकलती थी झाड़ी से आसमान को, और वो 500 गज किलोमीटर जाके गिर जाती थी। हजारों बत्तियां। आइडिया ये था कि बिना अटैक किए, बिना लड़े, ये डोगरे जम्मू के भाग जाएं वहां से, कि जम्मू पाकिस्तान का कुछ आने वाला है, अटैक आने वाला है। इसलिए वह वो सब डराने का बंदोबस्त था। फायर होता था, बॉर्डर पर भी फायर होता था। तो बॉर्डर से कई लोगों ने अपनी लेडीज हमारे घरों इधर भेज दी थी, जैसे बशनाक के इलाके या बशनाक के आगे के इलाके, वहां मेरी जमीन है, चुम्बिया ब्राह्मणा, और उधर, तो वहां से उनकी लेडियां हमारे गांव में आ गई थी, मगर वो रात को हमारे भी आके हमला करते थे। तो ये हालत थी उस वक्त। उस वक्त भी महाराजा हरि सिंह अपना काम कर रहे थे। उन्होंने हम सबको कमीशन भी दी। उस वक्त वो कोशिश भी कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर, खतरा था, उनको लग रहा था कि वो शायद अंग्रेजों के साथ मिल रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर की तलाश कर रहे थे। क्योंकि जो उस वक्त, फिर उन्हें थोड़े दिनों में ही काक को डिसमिस कर दिया, समझो निकाल दिया प्राइम मिनिस्टर। और जब तक वो उनको नहीं मिले दूसरे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने जनरल जनक सिंह कटोच थे, उनके जनरल थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उनका लड़का मेरे साथ था, वो भी कमीशन में था, पास हो गया, और हम दोनों इकट्ठे ही एक ही कमरे में रहते थे। तो ये काम हो रहा था, बहुत जिम्मेवारी थी। रियासत आजाद हो चुकी थी उस वक्त, और उसकी जो बड़ी अलग कहानी है। अभी कुछ रोज हुए तो मेरे पास एक वकील आए, सुप्रीम कोर्ट के वकील। जब वो 370 का केस ये लूज कर गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और स्टेट वालों ने भी किया था सिब्बल के साथ, और वो रेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, फरूक साहब की तरफ से सिब्बल के साथ जुड़ा हुआ था। जब लूज कर दिया इन्होंने, तो उसको रेड्डी, मिस्टर रेड्डी, सीनियर एडवोकेट, उसको बोला कि तुम जनरल गोवर्धन जयमाल हैं जम्मू, उनके पास जाओ, उनसे पूछो असलियत क्या है। तो मुझे टेलीफोन आया उनका कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं कहा वेलकम। वो थोड़े रोज हो, शायद ये अप्रैल की बात, और थोड़ी जल्दी उसके केस 370 केस डिसमिस होने के बाद मैंने देखा वो अपने बूट बाहर गेट के बाहर ही खोल के आए। तो मैं, मेरे पास बैठ गए, पाँव नंगे, जुराब भी नहीं लगी थी। तो मैंने सोचा ये कोई बड़े सीकर लगते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में कहते हैं जिसने किसी से कुछ ज्ञान लेना हो तो नंगे पाँव जाना चाहिए। तो मैं समझ गया, तो मैंने कहा जी क्या बात है, ये जो बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये सब आपके संशय दूर कर देगी। कहता, पहला सवाल किया कि वाई महाराजा हरि सिंह डिड नॉट एक्सीड टू इंडिया बिफोर 15th August 47, कुछ होना ही नहीं था। आई सेड, यू मे नॉट ट्रस्ट मी बट आई एम श्योर यू ट्रस्ट गूगल। ही सेड यस आई डू। I said, ask Google the same question which you have asked me. So he asked the same question. The question answer came yes. Why Maharaja Hari Singh did not accede to India? The answer came, perhaps Maharaja Hari Singh wanted to remain independent. I said, now ask another question. Don't you know that Maharaja Hari Singh sent his deputy prime minister Batra
to Nehru on 18th July 1947. He asked the question. The answer came yes. But Nehru sent him to Sheikh Abdullah. Sheikh Abdullah was in prison at that time. And does it mean that Maharaja Hari Singh should go to or should send him and to him in his prison, which he had been imprisoned by some magistrate? That was all. The advocate almost touched my feet. And he didn't ask me a second question. He came at 10 o'clock in the morning and left 8 o'clock in the evening after 10 hours. So 10 hours he was asking me question after question. And he wrote almost a book, photographed my 24 books, and took notes after notes. And after 1 week, he sent me a beautiful book written by a foreigner about this very incident. And he writes me on that, I am so grateful to you that whatever you told me 10 hours is written in this book. I said, I have never read that book, but by my own assessments, having lived with Dr. Karan Singh 3 years with him as a military secretary, meeting all the ambassadors and the ministers and everybody, my assessment from the day one was this, which I have told you, and now everybody has agreed. And so these are the truth. Nobody knows. And Jammu Dogras don't know anything about these things. So they are lost. And there are many things. They don't read. I'm glad you have started this. I hope they will now start. Otherwise, they will lose Jammu very soon. Very So well. Maharaj Hari Singh was really great, and he has saved us. The plan was so perfect. There was no chance to escape. It was only really Rajendra Singh who saved the state. With 100 Dogras against 6,000 Pakistanis. Battle of Gadi, the first one. Colonel Narayan Singh, even at Muzaffarabad, although he was totally surprised, yet he, with 10 men, did not let 6,000 convoy pass or cross over the Dumail bridge. Whole day was saved by 10 men and one MMG firing, and that Havaldar had been left out by another battalion, 8 Jack, which was going to Punch. They didn't have the transport. They left the MMG, long range firing weapon, very effective. So they put him just on a small hill, small. When he saw that all the people have been killed and civil population is being also butchered, तो वो बच्चे उनके उठा के उनके सामने ऐसे गाड़ियों के आगे फेंकते, दूसरे बच्चे ऐसे दरिया में, वो दूसरा इधर से जेल में जा रहा था, दूसरी तरफ से वो दूसरा दरिया आ रहा, वहां दोनों मिलते हैं कृष्ण गंगा. कुछ बच्चे आंखों देखा हाल मैंने दिखा है. और वो जो एमएमजी उसने शाम तक उस पुल के ऊपर फायर करते रहे. वो 300 गाड़ी 6,000 पाकिस्तानियों के साथ खड़ी बैठी है. उधर से 10 आदमी कर्नल नारायण सिंह के साथ, इधर से ये 5 आदमी एमएमजी के साथ. पूरा दिन बचा दिया. नहीं तो प्लान ये था कि 10 बजे 3,000
अब वो 6,000 आदमी, 300 गाड़ी या कितनी, पर गाड़ी सड़क खाली थी, कोई फौज नहीं थी। उसको पता था क्योंकि 4 जन के हमारी पलटन थी, उनकी उनकी फैमिली भी कोई बादाम बाग में हमारे पास रहती थी। तो प्लान ये था कि वो चलेंगे, 7 घंटे का रास्ता था, 10 बजे चलना था उन्होंने, और 3 और 5 बजे के बीच महाराजा हरि सिंह को पकड़ के दस्तखत करवाने, एक्सीडेड टू पाकिस्तान, बात खत्म। ये अंग्रेजों की प्लान, और ये इम्प्लीमेंट करवाई पाकिस्तानियों से, और नाम दिया ट्राइबल का, और ट्राइबल भी बीच में लाए, कपड़े ट्राइबल के लगवाए सबको। इस तरह से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने बचाया, और इस तरह महाराज हरि सिंह ने, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, बल्कि महाराज हरि सिंह तो खुद वर्दी डाल के, वो क्या कहें, देखो क्या कमाल किया महाराज हरि सिंह ने। किसी को नहीं कहा कि आप जाओ मरो उधर, वर्दी खुद डाली चलने लगे। उससे लॉयल्टी का पता लगता है, उससे लीडरशिप का पता लगता है। और उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर दे दिया, बिना ऑर्डर दिए पूरी फौज को, लखनपुर से लेकर लद्दाख तक मैसेज चला गया 8,000 7,000 डोगरा फोर्सेस को, कि महाराज हरि सिंह वर्दी डाल के मुजफ्फराबाद जा रहे हैं। सब चुकन्ने हो गए, सब होशियार हो गए, सब मुल्क के लिए मरने के लिए तैयार हो गए, और उसी स्पिरिट से उन्होंने ये रियासत बचाई अगले पूरा 14 महीने। ये महाराज हरि सिंह की काबिलियत थी, कोई इसको समझे ना। और आदमी उन्हें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह गए, उन्होंने कहा नहीं महाराज आप ठहरो, आप दिल्ली से बात करो, मैं जाता हूँ। मैं, बेशक आदमी नहीं है, हम जो भी मिलेगा वो 100 आदमी लेके गए। जब महाराज हरि सिंह, फिर पीडी राजेंद्र सिंह ने 23 तारीख, वो लड़ाई जो है वो सुनने वाली है, वो कभी बाद में आपको बताएंगे। उन्होंने वो उसमें ये हमारे नरसिंह देव जयमौल बीच में बैठे थे, वो सब खत्म हो गए, सब मर गए। मगर उन्होंने, कहते हैं 300-400 पाकिस्तानी जब वो आए हैं गड़ी में मार दिए, जिसकी वजह से वो रुक गए, और उड़ी भी नहीं पहुंच पाए रात तक। और इन्होंने उड़ी का डिफेंस किया, और उड़ी का पुल उड़ा दिया दूसरे दिन, और पुल उड़ाने से 2 दिन और मिल गए। फिर महुरा में एक दिन, फिर आगे एक और 5-4 दिन हमारे ब्रिटिश साहब ने बचा दी, जिसकी वजह से वो अलग कहानी है। अभी इसमें अगर पढ़ गए तो शायद आपको और बातें पूछनी होगी। ये तो बहुत, ये असली कहानी है, इसकी किताब मैंने निकाली है, वो वही राजेंद्र सिंह के नाम से, वेलर एंड बिट्रेल। वो पढ़ो तो इसमें एक करेक्ट एक एक चीज लिखी हुई है, मगर डोगरे पढ़ेंगे नहीं, उन्होंने देखी भी नहीं होगी। 3 साल हो गए, डॉक्टर करण सिंह ने अमर महल में 2021 में रिलीज की थी, पर यहाँ किसी को पता नहीं है, वो अमेजोन में है वो। तो ये बदकिस्मती है हमारी। अभी आपने ये काम शुरू किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम यही सुनेंगे। पर शायद इतनी देर जब तक आप बैठे हैं इतना सुना, इसके बाद चले गए होंगे, अभी नहीं सुनेंगे इसके बाद। नहीं नहीं सर, जरूर जरूर सुनेंगे सर। और आपने जो महाराजा के बारे में, जो हमारे महाराजा के बारे में आपने बताया कि हाउ ही वाज, किस तरीके से उन्होंने लड़ाई का नेतृत्व खुद करने के लिए वर्दी पहनी सर, तभी महाराजा डिफरेंट है सभी महाराजाओं से। इससे मिलता जुलता सर एक पर्सनल सवाल आपसे कि महाराजा जो आपकी याद में महाराजा हरि सिंह जी हैं, कोई ऐसा मूवमेंट सर जो जितने भी यूथ हैं वो भी इससे समझे कुछ, एक ऐसा इंसिडेंट जो हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में सर छप चुका है, महाराजा की इमेज, ऐसा कोई इंसिडेंट सर जो मतलब बताना आप चाहें महाराजा के बारे में, एनी इंस्टेंस सर। महाराजा हरि सिंह जी को 49 में उन्होंने बुलाया था उधर बातचीत करने के लिए, चालाकी से, और किसी को पता नहीं लगा। जम्मू में
कोई नहीं जानता कि महाराज हरि सिंह को क्या हुआ, क्यों उनको जला वतन कर दिया, और जहां लोगों को कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बुलाया था बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया था, वो प्लान था कि बातचीत करके उनको बताएंगे कि अब आप वापस नहीं जाओ, थोड़ी देर के लिए अब बॉम्बे आपका है, वहां आप जाते रहते हैं, रेसेस के लिए भी जाते हो, विंटर में समय कुछ गुजारते हो, सेहत तो वहां चले जाओ, थोड़ा अपना सेहत ठीक हो जाएगी, फिर वापस आ जाना। ये पटेल साहब ने उनको कहा। नेहरू तो ये भी कहने के काबिल नहीं थे, उन्होंने बोल दिया पटेल को कि आप हैंडल करो, इनसे बोलो। उनको नहीं पता था, जब ये पता लगा तो बहुत दुखी हुए, वो बहुत दुखी हुए। मैं गया उनके पास 1954 में, वो तो 1949 में गए थे। 5 साल बाद जब मैं एडीसी आया 1954 में, मार्च में, डॉक्टर करण सिंह जी सदर रियासत से मैं एडीसी गया, तो उन्हीं दिनों डॉक्टर साहब की युवरानी, उन दिनों डॉक्टर साहब को युवराज बोलते थे, युवरानी का नोज ऑपरेशन हुआ था, वो महाराजा हरि सिंह ने ही करवाया था अपने पास रख के। तो मैं उनकी ड्यूटी 1 महीना वहीं रहा महाराजा साहब के साथ। तो महाराजा साहब ने खुद खाना बनाना हमको बताना, वो कहते हैं ये देखो मक्की, इसका सरसों का साग रखा हुआ, सूखा हुआ, कुन्नी के बीच में घड़े में, वो निकाला, उसको पानी में भिगोया, ठीक है, उसकी सरसों का साग मेरे सामने बनाया और कहा ये देखो सरसों का साग, सरसों जम्मू से आई है, तो आप खा के बहुत अच्छा, ही वॉज ए वेरी गुड कुक, बहुत अच्छे कुक थे। फिर राजे महाराजे आते थे, उधर बैठे थे। अब मुझे याद है वहां एक ऑर्डर था कि जम्मू कश्मीर की बात नहीं कोई करेगा उनके साथ। वो 12 साल रहे वो वनवास में, जम्मू कश्मीर की बात नहीं करी। और मैं 1 महीना रहा उनके पास, एक दिन नेहरू के खिलाफ या नेहरू की बात, एक दिन अब शेख अब्दुल्ला की बात कभी नहीं की। मैं अपनी रियासत की बात भी नहीं की उन्होंने कभी। क्या महाराज थे। ओ, हमारा एक पेन गुम हो जाए तो हम दुनिया छान मारेंगे। उनकी रियासत छीन ली, घर से निकाल दिया नेहरू ने, उसका हमें बड़ा नुकसान हुआ। आप पूछते हैं ना कि आपको कैसे ख्याल, आई फील जिल्टेड, आई फील इंसल्टेड, आई फील डैमेज्ड, कि मेरी जैसे ही लड़ाई हम जीतते, मेरी रियासत की फौज की, मैं जिसका हूँ, 7,000 फौज थी, उसमें 1990 मर गए, जिसमें 19 अफसर थे। 2,000, 7,000 में से 2,000, 30% किल्ड इन एक्शन और मिसिंग। इंडियन आर्मी 14 महीने लड़ी, 4 लाख फौज थी उस वक्त, हम तो 7,000 थे। 4 लाख में से 40,000 फौज जम्मू कश्मीर में लड़ी, कुल 1,100 शहीद हुए, कुल 1,100। हमारे 7,000 में से 1990, 2,000, किसी को पता ही नहीं। मुझे पता था, दुख होता था। बाकी स्टेटों में भी डिसबैंड हो रही थी, क्योंकि कोई स्टेट की कोई फौज नहीं रहनी थी। उनमें कोई अच्छे लोग जो थे, अच्छे थे, उनको वो स्क्रीनिंग करके कोई कुछ अफसर, कुछ जेसीओ लेके दूसरी रेजिमेंटों में डाल देते थे। तो 49 में लड़ाई खत्म हुई, और हालांकि उन्होंने कहा था कि प्लेबिसेट होगा, और प्लेबिसेट में जम्मू कश्मीर रियासत की फौज रह सकती है। और 1951 के शुरू में 5 नंबर पलटन, जिसने पूरा जम्मू बचाया था 47 में, आपके सुचेतगढ़ में, आपको अरनिया में, आपको सांबा में, आपको हिरानगर में जो अटैक होते थे, इस पलटन 5 JNK ने बचाया था। उस पलटन को डिसबैंड कर दिया कुंजिया में, सब 800 आदमी घर भेज दिए।
थोड़े दिनों बाद सिक्स जैक जो गिलगित बल्तिस्तान में लड़ी, आधे सिख थे डोगरे जम्मू के, आधे सिख डोगरा सिख, और दूसरे आधे दूसरे जम्मू डोगरे, उस पलटन को भी तोड़ दिया। तीसरी पलटन 8 नंबर जिसने पुंछ बचाया, उसमें डिसबैंड कर, 3 पलटनें गई घर को। हालांकि गवर्नमेंट ने ये कहा था, नेहरू माउंटबेटन कह गया था कि जो फैसला हुआ था कि JNK स्टेट फोर्सेस रहेंगी प्लेबिसाइट के लिए, तो ये मैंने देखा हुआ था, ये हमारे साथ हुआ था। और अब जो बाकी बचे थे उनको तैयारी हो रही थी कि इनको घर भेजना है, हमने भी घर जाना था। उन हालात में बेशक हम एक्सीड हो गए थे इंडियन आर्मी के साथ, वो हम एक्सीड हो गए 25 तारीख, जब महाराजा जैसे वो ब्रिटिश साहब ने बचाया पूरे उस इलाके को, तो वो BP मेनन आए थे, उन्होंने देखा था, महाराज हरि सिंह को बोला कि आप आज रात चले जाओ जम्मू, तो मैं जरूरत पड़ी तो वहां जम्मू आऊंगा। वो नहीं जाते थे, ये मेरे सामने की बात है, मैं उधर ही था, उनको भेजा, शाम को चले गए वो 26 की रात को। तभी तो दूसरे दिन वो जाके उन्होंने अमर महल में आके साइन किया, और फिर जाके माउंटबेटन को तो सब पता था कि हमला हुआ है। माउंटबेटन क्यों नहीं मान रहा था? इसलिए नहीं मान रहा था कि उसको खबर आ रही थी कि वो पटन पहुंचने वाले हैं, अब वो बारामूला पहुंच गए हैं, लेकिन बारामूला रोके गए हैं। इस वास्ते वो कहता है, कौन कहता है कि वहां खतरा है? माउंटबेटन ने ये कहा नेहरू को, कौन कहता है यहाँ खतरा है? होंगे कोई रेडर, ये रेडर उसने नाम दिया हुआ है, होंगे कोई रेडर। ये हुआ हमारे साथ जम्मू कश्मीर के साथ, सब कुछ किया अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ। महाराजा हरि सिंह नहीं होते उन जैसा, तो जम्मू कश्मीर रियासत तो बच ही नहीं सकती थी, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अंग्रेज जिनकी दुनिया में सूरज नहीं गुरूब होता, वहां ये क्या बात थी? पर महाराजा हरि सिंह ऐसे चालाक निकले, जब माउंटबेटन आया जून में कि एक्सीड करो पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात, परसों बात करेंगे, जाना 2 दिन आप जाओ, शिकार खेलो फिर। तो जब तीसरे दिन चौथे दिन जाने लगे तो बीमार हो गए। क्या कमाल का! महाराज हरि सिंह को वो कहते हैं, वो ऐसे ही थे, कहते हैं लाहौर झंडा चढ़, ही वॉज हाईली क्वालिफाइड मैन। उन्होंने वो सारे मोट उसके चर्चिल के साथ उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर थे वर्ल्ड वार 2 में, और सारे देशों में उनके साथ घूमे। और जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, जो वो हुई हमारी 1930-31 में राउंड टेबल। राउंड टेबल का, उसमें जो लिखा हुआ है वो एक एक लफ्ज डोगरे को याद होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि गिलगित उनको दे दी जाए, ताकि वो पाकिस्तान जब बने या नहीं बने, जब तक भी वो रशिया के साथ तीसरी लड़ाई जब होगी, तो वो लड़ाई यहाँ होगी। वही उसी को तो ग्रेट गेम कहते हैं, वो ग्रेट गेम उनकी ये थी। और उसके लिए जम्मू कश्मीर उनको चाहिए थी, उसी के लिए पाकिस्तान बनाया, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में दे दी, कि वो तिब्बत से लेकर के लद्दाख के रूट से, अफगानिस्तान से होते हुए वेस्ट एशिया ऑयल फील्ड्स तक, ये इलाका यहाँ वर्ल्ड वार 3 करवानी थी यूरोप की बजाय। मगर वो वर्ल्ड वार 2 वहां होनी थी, इसे इधर पर हो गई उधर। और रशिया बजाय अपोजिट जाने के हो गया राइस के साथ। मगर बदमाशी अंग्रेजों की ये कि उन्होंने फिर भी गिलगित हमें वापस नहीं दी। 1935 में 60 साल के लिए ली थी, और 47 में जब इन्होंने जाना था, तो जाने से पहले
अगस्त के महीने 1 अगस्त को दी। क्यों? तब तक उनकी प्लान तैयार हो गई। वो दत्ता खेल, ऑपरेशन दत्ता खेल। वो क्या है दत्ता खेल? कि किस तरह से गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर कंसारा सिंह को कैसे पकड़ना है, कैसे उसको, उसकी बजाय पाकिस्तानी हुकूमत लानी है, वो है दत्ता खेल। वो भी कामयाब हो गए। जम्मू के खिलाफ और कश्मीर के खिलाफ था ऑपरेशन गुलमर्ग। वो किताबों में है, मगर किसी ने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। और वो ऐसा है, उसके लिए मैं आपको अलग किसी दिन आपको बताऊंगा। वो तो सरासर सामने, और मुझे बहुत देर से पता है उसका, क्योंकि स्टाफ कॉलेज में वो जनरल मानिक शाह हमारे कमांडेंट थे, और उनका एक अफसर थे कर्नल, जो उस वक्त मेजर कालकट थे। उनको वो साइन किए हुआ ऑपरेशन ऑर्डर मिल गया 20 अगस्त को। उसमें लिखा था कि तुम 20,000 लोगों, 20,000 फौज के साथ अटैक करोगे। 10,000 से सियालकोट से जम्मू पर, 10,000 से बन्नू कोहाट ब्रिगेड का ब्रिगेड कमांडर था जिसके लिए ये ऑर्डर लिखा हुआ था। 6,000 मुजफ्फराबाद पर, 2,000 गुलमर्ग की तरफ, और 2,000 टीठवाल से बांडीपुर की तरफ। क्लियर ऑर्डर। ये मेरे पास किताब पड़ी, इसमें लिखा हुआ है। और कलकट की आंखें फूट गई जब उसने उसको बताया, अपने ब्रिगेडियर को। वो दूसरी रात को कहीं आगे पिकेटों पर चला गया था, वहीं रह गया, आया नहीं। किस्मत परमात्मा ने पर उसका फायदा नहीं हुआ। हालांकि उसने बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई उसको। उसने वाइफ अपनी भेजनी पड़ी उसको। तो जिस मुस्लिम अफसर ने उसको वहां से चोरी से निकाला एक गाड़ी में रात के 12 बजे, उस मेजर कलकट को, उस अफसर को, दोनों को पाकिस्तान ने शूट कर दिया, मार दिए अपने अफसर। कि तुमने कलकट को एस्केप करने में मदद की है। और कलकट इसलिए एस्केप होना चाहता था कि वो 20 तारीख से 2-4 दिन पहले आ जाए, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि 21 को, 22 को अटैक होगा। तो वो आ गया। 21-22 की रात को अटैक लिखा हुआ था। और बलदेव सिंह को बता दिया 19 तारीख सुबह। बलदेव सिंह ने नेहरू को जरूर बताया, और नेहरू नहीं बोले। उन्होंने, मेरचंद महाजन प्राइम मिनिस्टर थे, उनको टेलीफोन भी नहीं किया। महाराज हरि सिंह तो छोड़ो, मेरचंद महाजन तो कांग्रेस के थे, नेहरू के आदमी भी थे, उसको भी नहीं बताया कि मरे ये कश्मीर। मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर नेहरू ने, कहते तो सब हैं, पर मेरा ख्याल है वो दे दिया था पाकिस्तान को। नहीं तो ये होता नहीं जो हुआ। और उसका हमें पता है। मैं कोर्स में गया तो मुझे, वो तो मेरा डीएस था, कालकेट कर्नल था, उसने मुझे पता है। पर हम क्या करें, बोल नहीं सकते थे फौज में कुछ। और अगर आप किताब पढ़ो, ये मेरे पास किताब है, वो किताब उन्होंने जे के ऑपरेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये, और 1987 पब्लिश हुई है। मगर पब्लिश होके निकाली नहीं है, इशू नहीं हुई है। ये बहुत बहुत ज्यादती हुई हैं। आप कहते हैं कि आप कैसे बात, मुझे तो नींद नहीं आती है, क्योंकि जुल्म हुए हमारे, महाराजा हरि बिल्कुल सिंह के सही। साथ हम सबसे जुल्म हुए हैं। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इससे इससे मिलता जुलता सर, जो आपका मिलिट्री कैरियर रहा है अपना पर्सनल, आजादी से पहले आप सर स्टेट फोर्सेस में थे। और जब आजादी हुई और आप स्टेट फोर्सेस से आपकी ट्रांजिशन हुई इंडियन आर्मी में, तो हम आपसे उस एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं। एंड व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस ड्यूरिंग दैट ट्रांजिशन, एंड हाउ डिड यू अडेप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी?
तो पहले का और बाद का और वो पूरा सफर, उसके बारे में ब्रीफ में आप हमें कुछ बताना चाहें सर। बड़ी पुरानी यादें आपने मुझे याद करवा दी हैं। एक्चुअली एक एक दिन याद है, क्योंकि बहुत मुश्किल दिनों से हम गुजरे हैं। आप अंदाजा लगाओ, मैं लेफ्टिनेंट था जब ये हुआ। बल्कि पहला दिन मेरा लड़ाई का वही ब्रिज पर था जहां ब्रिगेडियर इंद्र सिंह जी का ब्रिज जो उड़ाया और कश्मीर बचा ली थी। 15 जुलाई को मैं वहीं गया था। वहां से मैं देख रहा था, मेरी पलटन उस वक्त पुंछ में थी, घेरे में थी। वो उसको काफी समय लगा। वो जुलाई 48 की बात कर रहा हूँ, और वो निकली है जाके सितंबर अक्टूबर नवंबर 48 में। तो फिर मैं पलटन में गया। वैसे तो हम इंडियन आर्मी में 26 जो अब सेशन डे है उसी दिन से हो गए। हमारा पे, अलाउंसेस, खाना पीना, वो सब इंडियन आर्मी। जेएनके फोर्सेस समझो नाम के रह गए, खत्म हो गए। तो एक नया चैलेंज आ गया, वो नई आर्मी, उनके नीचे सर्विस करना। पलटने तो हमारी अपनी थी, मगर ऊपर कमांडर्स उनके हो गए। और जैसे डोगरा को जनरली नहीं ट्रीट करते थे, महाराजा हरि सिंह का क्या किया, निकालने की तैयारी थी। जिसको निकालने की प्लान बनाई हो उसकी फौज को कौन रिस्पेक्ट देगा। हमें नहीं पता था कि महाराज हरि सिंह को निकालना है, लड़ाई खत्म होते ही निकालना है। तो उसकी फौज का कौन ध्यान करेगा। उस हालत में हमारी फौज ठोकरें खाते रहे हम। तो पलटने हमारी कोई कहाँ जा रही है, कोई पंजाब में है, कोई जयपुर में चली गई, एक पलटन हुसैनवाला में चली गई। वो जो मुजफ्फराबाद में मार खाई थी जिस पलटन ने, वो दोबारा तैयार की, रेज की, तो वो चली गई हुसैनवाला। उस पर पाकिस्तान ने जेएनके की पलटन आई है इधर, उसका कुछ उधर डिस्प्यूट था, उसने अटैक कर दिया 2 पलटनों ब्रिगेड के साथ। वो हमारी पलटन की कंपनी लीड थी, उसने उनके पता नहीं 300 आदमी या 400 मार दिए, ब्रिगेड ही खत्म हो गया। और जो डिवीजनल कमीशन उनका डिवीजनल कमांडर था, डिव कमांडर मेजर जनरल, वो घबरा गया। उसने हमारे मेजर जनरल ईपी एरिया को टेलीफोन किया कि हमको बचाओ, ये कौन सी पलटन है। उन्होंने कहा ये महाराजा हरि सिंह की पलटन है, डिसबैंड होने को आई है, यहाँ बैठी हुई है। कहता है इन्होंने तो हमारी तबाही कर दी है, बंद करो, खलासी करो। ये हमारी उस वजह से क्या हुआ, वो जो त्यागी डिफेंस मिनिस्टर थे उसमें वो कहीं यूपी में गए हुए थे, उनको पता लगा कि महाराजा हरि सिंह की एक छोटी सी पलटन के 2 कंपनियां उधर थी, बाकी पलटन फिरोजपुर में थी। उसने पाकिस्तान का एक ब्रिगेड मार दिया है ऑलमोस्ट। और क्योंकि उनका पंजाब से, पाकिस्तान से डिवीजनल कमांडर मेजर जनरल का हमारे मेजर जनरल ईपी एरिया पंजाब को टेलीफोन आ रहा था कि हमसे बचाओ, हमारा बड़ा नुकसान हो गया है। वो उसने डिफेंस मिनिस्टर को बताया। डिफेंस मिनिस्टर पहुंचा दौड़ता हुआ हुसैन वाला। उसने कहा ये कौन है, ये महाराज हरि सिंह की फौज है, इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं डिसबैंड। उन्होंने कहा एक बच्चा डिसबैंड नहीं होगा, पूरी रेजिमेंट इंडियन आर्मी का हिस्सा होगी। और आज एक ही रेजिमेंट पूरे हिंदुस्तान में है तो जम्मू कश्मीर राइफल्स है, महाराज हरि सिंह की रेजिमेंट है, डोगरा फोर्सेस। आज वो जिसके अभी द्विवेदी चीफ हैं, वो मेरी रेजिमेंट के, जब मैं रिटायर होने के 5 महीने बाद वो सेकंड लेफ्टिनेंट आए थे।
यहाँ मेरे पास आए थे, इधर ही बैठे थे 2 घंटे। तो बत्रा हमारी बर्तन का है, दिल मांगे मोर, ये पलटन है डोगरों की। बत्रा भी डोगरा है, 13 जैक राइफल का है। दूसरा हवलदार, 2 वीर चक्र उसने कर गए। एक ही पलटन है हिंदुस्तान में, 2 परमवीर चक्र एक ही जगह पर। हमारे बाना सिंह भी है, पर वो बाद में 84 में। तो ये है आपकी महाराज हरि सिंह की फौज। लेकिन कोई इज्जत नहीं मिली हमको, बहुत साल लगे। अब जाके जब हुसैन वाला हुआ तो उसके बाद थोड़ी समझ आई कि ये तो बड़े डोगरा बड़े बहादुर हैं। इन्होंने पहले बड़ी बहादुरियां की थी। जनरल जोरावर सिंह हमारा ही था, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। उसकी कहानी अगर मैं सुनाने लगा तो फिर आपका समय खत्म हो जाएगा, तो उनको कहीं बाद में सुनाएंगे। क्योंकि इतना समझो आपके, अभी एक ही टैंक हमारे नाम पर बड़ा है हिंदुस्तान में, वो है जोरावर टैंक, बराबर। लद्दाख के लिए, चाइना के अगेंस्ट। क्योंकि लद्दाख उन्होंने फतह किया था, अगर नहीं फतह किया होता तो आज चाइना के पास होता। तो ये बाद में कभी आपको सुनाऊंगा। जोरावर सिंह की कहानी क्या कमाल, वर्ल्ड क्लास है। जी थैंक सर। यू। सर एक आपके एफर्ट्स के ऊपर जो सर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, जिनको हम सेवियर ऑफ कश्मीर जिनको कहते हैं, उन्होंने अगर हम कहें तो एक मॉन्यूमेंटल रोल प्ले किया और एक सुप्रीम कंट्रीब्यूशन है और लेजेंडरी सेक्रीफाइस है उनका। जो सर आपने बताया अभी कि किस तरीके से 100 सोल्जर्स को लेके बिना उसके सोचे हुए महाराजा की कमांड पे वो फ्रंट पे चले गए। लेकिन सर आयरनी ये थी, काफी सालों तक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी कभी भी लाइमलाइट में नहीं आए, हमारी फोकलोर्स का पार्ट नहीं बने, हमारी टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं बने। सर जो हमने रिसर्च की, मैंने और डॉक्टर विकास ने, वी केम टू नो सर, यू आर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी अ हाउस होल्ड नेम फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड्स। सर ये इतना मोमेंटस काम और इतना मेहनत वाला काम कि एक इतने महान शख्सियत को एक रिकॉग्नाइज करना। आज की डेट में अगर आप किसी बच्चे को सर नींद में भी पूछते हो, मैं मानता हूं सर हम डोगरे रीडिंग में कमजोर हैं, बच्चे को उठा के अगर आप पूछोगे ना कि उसके मुंह से 3 नाम जरूर निकलेंगे सर। उनके मुंह से महाराजा हरि सिंह, जनरल जोरावर सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र राजेंद्र सिंह, जो आपकी मेहनत की वजह से आज हाउस होल्ड नेम है। सर कैसे किया सर आपने ये नामुमकिन काम को मुमकिन सर? ये आपने मेरा दिल छू लिया है, क्योंकि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को मैंने देखा हुआ है। लेफ्टिनेंट बनने से पहले मैं उनके घर गया था, ब्रिगेड कमांडर थे उस वक्त वो, श्रीनगर में थे। और जब मैं वहां गया, वहां क्या हुआ था वो मैंने शुरू में बताया नहीं पूरा। मेरे पिताजी फौज में नहीं थे, वैसे उन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी से सीनियर थे स्कूल। उन दिनों वो बगुना कहते थे, अब राजेंद्रपुरा। वहां मौलवी पढ़ाते थे 5वीं तक, वो दोनों इकट्ठे पढ़े थे। तो उन्होंने कहा था जब जम्मू श्रीनगर जाओगे तो बीडी साहब के दर्शन कर लेना, उनके पांव छू लेना। तो मैं उनके पास जाना भी था, लेकिन एक क्या हुआ कि मुझे कॉल नहीं आई आर्मी से। मैं बिना कॉल के ही गया। वो क्यों गया कि मेरा एक सेवा सिंह दूसरे दोस्त थे, पहले दोस्त ने मेरा फॉर्म भरा था, भेज दिया था। दूसरे दोस्त ने कहा मुझे कॉल आई है तो आपको भी आ जाएगी, कहीं रास्ते में रुक गई है आप, चलो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कॉल ही नहीं आई मुझे। वो गए, टिकट भी ले आए बस की, बिठाया और ले गए, कॉल का कोई इंतजार भी नहीं किया। वहां पहुंचे तो पता लगा कॉल नहीं गई, मेरा केस रिजेक्ट हो गया था। क्यों रिजेक्ट हुआ? कि मेरे पिताजी आर्मी में नहीं थे, दादाजी थे, वो मैंने लिखा नहीं था। उस वक्त तो रूल ये था फौज में अफसर बनने का कि या आपका पिता फौज में हो या दादा फौज में हो,
अगर दो में से एक फौज में नहीं है तो आप अफसर नहीं बन सकते। आप पहले सिपाही बनेंगे फिर अफसर बन सकते हैं। सिपाही तो कोई भी बन सकता है। अफसर बड़ी रिलायबिलिटी की बात होती है, बड़ी सिक्योरिटी की बात होती है। अफसर वही बनेगा जिसका पीछा क्लियर है। तो उसमें फादर फौज में या ग्रैंड फादर फौज में। तो मेरे फादर फौज में नहीं थे, ग्रैंड फादर का मैंने लिखा नहीं था। तो तो भी मैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के पास गया था। मैंने कहा वैसे दर्शन करने, मैंने कहा मेरा ये प्रॉब्लम भी आ गया है। तो उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं, मुझे पता है आपके ग्रैंडफादर 94 रेजिमेंट कैवलरी में थे। उन्होंने टेलीफोन कर दिया, हो गया। फिर मेरा प्रोसेस शुरू हो गया। तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को मैंने खुद देखा हुआ है, 1 घंटा उनके साथ। क्या पर्सनैलिटी थी, खूबसूरत। मुझे देखो, फोटो देखो आप, जो फोटो देखता है वो हैरान हो जाता है। डोगरा क्या फेस था। और फिर काबिलियत, और फिर ईमानदारी। पता है आपको, जब वो मर गए तो उनके कुल बैंकों में सब पैसा 300 रुपया था और कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। सोए एक छोटा सा उन्होंने श्रीनगर में एक घर खरीदा था, और कोई नहीं। गांव में एक छोटा मकान बनाया था, बस। कोई भाई नहीं था, बहन नहीं थी। फादर 6 दिन के मां मर गई, 6 महीने के फादर चले गए। कैसे कहाँ गए वो, प्रिंस ऑफ वालेस में बीए की, जब हम कोर्स में गए अच्छा किया, कमाल किया सब अपने। और जब चले गए तो पता लगा 6 उनके साथ स्कॉलरशिप्स, विडोज या किसी बच्चियों को घर को पता नहीं बाहर से ही दफ्तर से पहुंचा देते थे। ये उनका, मुझे सब पता था। ये मैंने किताब लिखी तो बाद में उनकी लड़ाई की कहानी मैंने सारी सुनी हुई थी। तो मैंने ये भी देखा कि कुछ नहीं हो रहा था उनका। फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद आए, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश करके राजेंद्रपुरा बगुना में उनकी जगह पर थोड़ी सी शुरू किया। और फिर बाद में उनके टाइम ही राजेंद्र बाजार भी का नाम भी डाल दिया। और फिर पार्क जो नहर पर है, राजेंद्र पार्क हो गया। ये 3 4 जगह बन गई। और ज्यादाश्तर के बारे में कुछ फंक्शन नहीं कोई खास होता था, उधर होता था थोड़ा सा। तो मैं 84 में रिटायर हुआ, 48 साल हो गए हैं। बाकायदा उस दिन से वो हम फंक्शन करते हैं ब्रिटिश साहब का, गांव में भी और यहाँ शहर में। मैंने स्पेशल फरूक साहब को, जब मैं एमएलसी बना तो मैंने कहा मेरी पहली शर्त ये है कि ये जो राउंड अबाउट है, चौक है, महिषी चौक, ये मुझे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह चौक बनाना है। तो आपने आके इधर मूर्ति लगानी है, आपने ही करना है। तो वो मान गए। उधर जो मूर्ति लगी है वो, उसका इनॉग्रेशन बाय फरूक, सेवियर ऑफ कश्मीर, उनसे ही मैंने करवाया। और ये सारा उसने करा हुआ है, हमारी स्टेट वालों ने। तो इस तरह से फिर किताब आज तक नहीं किसी ने भी राजेंद्र सिंह पर लिखी है। यही तो प्रॉब्लम है, मैंने ही लिखी है। और आज तक और दूसरी किताब नहीं है वीर राजेंद्र सिंह पर ये है कि नाम लोग जानते हैं। अभी मैंने छोटी सी किताब बना के सब डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कर रहा हूँ लोगों को। लोग पढ़े ही, डोगरे पढ़ते ही नहीं है। अभी आप पढ़ाएं उनको ये तभी ये जो आपने शुरू की है इसके माध्यम से ही शायद कोई जागृति आएगी हमें। नहीं तो सर, मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा, तो लोगों को महसूस तो होगा कि कहीं कमी रह रही है अभी भी। थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, आपके माध्यम से ये भी है कि जैसे आपने इतने एफर्ट्स किए हैं, तो हमारे इन हीरो के ऊपर जैसे बॉर्डर पिक्चर बनी है, जैसे कारगिल मूवी बनी है, तो सर इनके ऊपर भी रिक्वेस्ट यही है, जो भी अगर प्रोड्यूसर्स हैं जम्मू से या बाहर से, सर के पास रिपोजिटरी है पूरी ब्रिगेडियर साहब के, राजेंद्र सिंह जी के ऊपर। तो आप एक पहल कीजिए सब लोग कि
ब्रिगेडियर साहब पे एक मूवी बने। और जैसे सर ने बताया, मैं तो अभी इमेजिन भी नहीं कर सकता मन में कि उनका रोल कौन करेगा। बिकॉज जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, सर के बिल्कुल पीछे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की फोटो लगी हुई है महाराजा हरि सिंह जी के साथ। इतनी पर्सनैलिटी को कौन एक्टर कर पाएगा, ये अभी भी इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। ओवर टू विकास जी। सर, आपका एक एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे एज मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही एक अहम किरदार आपने निभाया है। आपको उसमें क्या चैलेंजेस देखने पड़े और आपने कैसे उनको ओवरकम किया एज ए वॉरियर डोगरा? वो भी एक बड़ा दिलचस्प पीरियड था। बाय चांस आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं वो एक्सपीरियंस पर बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मैं डॉक्टर करण सिंह जब वो सदर रियासत से तो 3 साल मैं उधर एडीसी रहा था। और वो गवर्नर कॉन्फ्रेंस में हर साल जाते थे, मैं भी जाता था। और वो तो खैर अपने घर में ही रहते थे, पर राष्ट्रपति भवन नेहरू के पास जरूर हर बार 5 बजे जाते थे वो, जब वापस मैं भी जाता था साथ। तो मुझे काफी एक्सपोजर हो रहा था उनके साथ रहने से। और फिर श्रीनगर में 3 साल रहा। समर्स में सारे एम्बेसडर्स, सारे मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एम्बेसडर्स, राजे महाराजे, वो सब आते थे और डॉक्टर करण सिंह को सब खाना खाते थे साथ, लंच डिनर। तो मैं ही अरेंज करता था सारा, और मैं ही साथ बैठता था, सारी बातें सुनता था। तो मेरी कुछ ऐसी ट्रेनिंग भी हो गई, एजुकेशन भी हो गई। सारी उम्र वो मेरे साथ ही रही। और जब मैं मिलिट्री सेक्रेटरी गया तो मेरे लिए कुछ नया नहीं था। और वो वैसे जॉब तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वायसराय के टाइम पर तो मिलिट्री सेक्रेटरी वाज वेरी पावरफुल मैन। तो मैं फिर भी वहां इतना कुछ देखा है। मैं वो एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है। वो तो पॉलिटिशियन को इतने एक्सपोज कर दें कि आप कहें कि क्या होता है दुनिया में, जो मैंने देखा है किस तरह से प्राइम मिनिस्टर उनके जो हमारे थे चरण सिंह से पहले उनको कैसे निकाला, मेरे हाथों से हुआ। संजीव रेड्डी साहब ने कैसे निकलवाया और चरण सिंह को कैसे प्राइम मिनिस्टर बनाया। और जब वो फेल हो गए तो फिर इंदिरा कैसे वापस आई। और फिर इंदिरा का वो हुआ, कसम, ओथ सेरेमनी, उसमें क्या हुआ, बड़ी बातें हैं, पर ये एक छोटी सी बताता हूं। सुबह जब इंदिरा गांधी बन गई प्राइम मिनिस्टर लास्ट टाइम 84 मार्च में, तो मुझे शाम को, सुबह स्वेरिंग इन थी 10 बजे, शाम को 6 बजे टेलीफोन आता राजीव गांधी जी का कि जनरल साहब आई वांट टू मीट यू। मैं वेलकम। वो आगे, मुझे याद है शाम को सनसेट हो रही थी, हम दोनों बरामदे में, प्रेसिडेंट का दफ्तर ऊपर था, रिहाइश भी ऊपर थी। तो मैं हम दोनों बैठे, मैं क्या बात है, मुझे कहते हैं कि कल स्वेरिंग इन है और मेरी माता जी बहुत परेशान है आज। मैं क्या, उनको तो खुश होना चाहिए, सुबह प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन रही है इमरजेंसी के बाद, कितनी तकलीफें होने के बाद, शाह कमीशन पीछे पड़े हुए थे, सब खत्म हो गया। वो इलेक्शन जीत ली उन्होंने, कल तो उनकी स्वेरिंग इन है। कैसे नहीं, वो कहती हैं कि मुझे गुरुजी ने बताया है या स्वामी जी ने बताया है, जो उनके हैं इष्ट हैं, कि अगर तुमने, सच असलियत बात बता रहा हूं आपको, कि अगर तुमने नॉर्थ की तरफ फेस करके ओथ ली तो आप बचेंगे नहीं। तो यू मस्ट चेंज द डायरेक्शन।
और वो कहती हैं ये संजीव रेड्डी मानेगा नहीं, क्योंकि संजीव रेड्डी दूसरी तरफ से था, वो चाहता मरे। ये उसने मुझे कहा। मैंने कहा भाई ये अच्छी बात नहीं है। शी इज प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इज नॉट इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, शी इज अवर प्राइम मिनिस्टर, हर वेल बीइंग इज अवर वेल बीइंग। इस वास्ते आई विल गो एंड रिक्वेस्ट हिम। ही सेड शी थिंक्स ही विल नॉट एग्री, दिस व्हाट ही टोल्ड मी। मैंने कहा नो, आई विल गो। आई वेंट टू हिम। मैंने कहा इंदिरा जी की सो स्वेरिंग इन, शी वांट्स दी डायरेक्शन टू बी चेंज, क्योंकि वो चीजें फिक्स्ड थी, मुझे पता था। माउंटबेटन से क्या, पहले वायसराय से लेकर वो चार दरवाजे थे, एक तरफ प्रेस था, दूसरी तरफ से पीपल एंटर करते हैं, तीसरी तरफ वो उनका बैंड कुछ और था, और चौथी तरफ एंट्री थी प्रेसिडेंट के कमरे से। वही बात हुई। रेड्डी साहब कहते हैं नो, कैसे हो सकता है, कभी हुआ ही नहीं है, क्यों, ये ठीक नहीं है। बड़े नाराज हो गए मेरे पर कि भाई आई डिड एंटरटेन दिस रिक्वेस्ट। मैं सुनता रहा, वो सब है। फिर मैंने कहा सर, शी इज गोइंग टू बी अवर प्राइम मिनिस्टर एंड शी विल रन द कंट्री, एंड इफ शी इज नॉट हैप्पी फ्रॉम डे वन, तो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। आप तो प्रेसिडेंट हैं, काम तो मुल्क को तो प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं। मैंने बोल दिया। उसे समझ गए कि ये भी एडमेंट हो रहा है। मैंने कहा कैसे हो सकता है, मैं नहीं, वो मेरे पर छोड़ो, आप यस करो, अच्छा अच्छा जाओ जैसे मैनेज करो। मैं समझ गया। मैं थैंक यू वेरी मच। आई टोल्ड राजीव, राजीव वोंट बिलीव इट। राजीव बहुत खुश होकर चला गया। सुबह रातों रात मैंने सब कुछ बदल दिया। सुबह आ गई इंदिरा जी, फर्स्ट क्लास, 4 साल 10 महीने ठीक ठाक। अक्टूबर के महीने गोली लग गई, खत्म। वो अब मैं ये समझता हूँ कि वो डायरेक्शन बदलने से 4 साल जिंदा रही, पता नहीं, नहीं तो दूसरी में। तो वो फिर भी जो उसने कहा था वो हो गया। शी वॉज शॉट डेड, 22 गोलियां लगी थी। तो ये कोई कहना कि ये गलत है, मेरे देखी हुई बात है। तो ऐसी बातें बहुत हैं प्रेसिडेंट के टाइम की, समझ नहीं होगा ना आपके पास, इसके लिए एक वक्त नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, क्या कमाल की बातें हैं। आप, मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑटोबायोग्राफी में लिखूं। अभी सोचता हूँ मैं छोटा सा आदमी हूँ, क्या करूंगा ऑटोबायोग्राफी लिखने के, पर लोग मजबूर कर रहे हैं कि ये बातें लिखने वाली हैं, सच्ची बातें हैं, लोग पढ़ना चाहेंगे। तो कोशिश कर रहा हूं मैं, वक्त नहीं मिलता, पर लिख डालूंगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं, इम्पोर्टेंट बातें। सर बिल्कुल लिखेंगे सर, तभी आगे आने वाले जनरेशन के लिए सर बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। दे विल लर्न फ्रॉम योर विजडम। सर हम खत्म करने के कगार पे ही हैं। तो सर कोई एक ऐसा इवेंट हिस्ट्री का, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का, जो सर आपको एक चांस माता वैष्णो दे कि आप उसको रिविजिट कर सकते हैं उस मूवमेंट को, और उसको चेंज करने का आपके पास इख्तियार होगा, वो इंस्टेंस क्या होगा सर? वो बड़ा साफ है। अगर महाराजा हरि सिंह को बजाय एग्जाइल के यहाँ पर महाराजा रखा होता, कुछ नहीं होना था। वो इतने काबल थे, इतने स्ट्रांग थे, उनको डर के ही नीचे कोई गलती काम नहीं होना था। आई विश he had not been exiled. I wish he had been made the राज प्रमुख हेयर। जैसे हैदराबाद वाले ने लड़ाई करी हमारे साथ, कैजुअलिटीज करी हमारे ऊपर फौज के साथ, उसको राज प्रमुख बना दिया नेहरू जी ने। और जिन्होंने रियासत लड़ते बचा के दे दी, उनको देश निकाला दे दिया, समझो, एग्जाइल।
सुप्रीम अपना एक किस्म का अपना सुप्रीम कोर्ट लाए जो उनकी जजमेंट के भी खिलाफ बोल सकता था। और एक केस में पंडित रामनाथ शास्त्री के केस में उसको बोला आप मेरे खिलाफ कोर्ट में जाओ, जो कोर्ट फैसला करेगा मुझे मंजूर है। कोर्ट ने फैसला मंजूर अगेंस्ट कर दिया कि उनका घर आपके पैलेस की दीवार के साथ है, आपकी दीवार वहां नहीं जाएगी। उन्होंने कहा नहीं जाएगी। ये महाराजा था आपका, क्यों निकाला? ये नेहरू साहब को पसंद नहीं था। वो कोहाला की बात याद करते रहे। कोहाला में उन्होंने उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया था। मेरी फौज थी वहां, मुझे पता है, पलटन थी, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। वो उनको नहीं पता था, आर्मी अफसर सब जानते थे, किसी ने उनको कुछ नहीं। वो खामखा धक्का खा रहे थे। और वो पॉलिटिक्स, गलत पॉलिटिक्स मैंने देखी है। उसकी बात मैं अगली कभी सुनाऊं, शायद या किताब में लिखूं। लोग मान यकीन नहीं करेंगे कि ये ऐसा काम करते हैं पॉलिटिशियन। वो मैंने देखा है। प्रेसिडेंट की बात कहें तो मैं सुनाऊं आपको, पर अभी वक्त नहीं है। आपको कभी, आप यकीन नहीं करेंगे क्या क्या करते हैं ये। और मैंने देखा हुआ है, मेरे हाथों से हुआ है, मैं कह सकता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने सर, मुझे मौका दिया हाँ, कुछ अंत बात। में सर, जाते जाते पूछना चाहेंगे सर आपसे। आप एक प्राउड डोगरा हैं, और हम सब यंगर जनरेशन जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, आप हमारे आइडल हैं। तो आप हम यंगस्टर्स के लिए, और जो अगली जनरेशन है हमारी जम्मू के यूथ्स की, डोगरों की, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? जिस डायरेक्शन में जम्मू और डोगरा बढ़ रहा है, आप क्या कोर्स करेक्शन चाहते हैं उनके? एज ए कम्युनिटी हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है और आपकी सजेशंस क्या है? ये हम जाते जाते आपसे ये एडवाइस लेना चाहेंगे सर। डोगरे आपकी तरह हों, जो जिस लगन से आप काम करते हैं, चाहे वो मेडिकल का काम है, चाहे वो आई वुड से सोशल वर्क भी है, पॉलिटिक्स का भी है, आपकी तरह लोग काम करें तो ये भी एक अच्छी बात होगी। पर मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये, और ये बहुत सीरियस बात है, कि डोगरा किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन डोगरा का दुश्मन डोगरा है। ये बहुत खतरनाक बात, और ये शायद ठीक भी नहीं होगी। लेकिन चूंकि एक हमारे पास साधन है, व्हाट्सएप या ये जो अभी आप कर रहे हैं, मीडिया सोशल, हो सकता है इसमें बार बार कहने से कोई चेंज आ जाए। नहीं तो डोगरे का प्रॉब्लम ये है कि डोगरा क्रैब का काम करता है, खींचता है दूसरे को, दूसरे और किसी को नहीं। डोगरा डोगरे को ही खींचेगा, दूसरे की मदद करेगा। जब बोलते हैं ना डोगरी जो फिड्डी, फिड्डी लगाने वाली गल, दो जने दौड़ा दे होना तो एक, मैं अगे नहीं निकलना, मैं सो इसी फिड्डी दें ताकि ये गिरी, ये नहीं मेरा दूआ डोगरा भरा अगे ने और अगे बाकी निकली जान पाए। वो फिड्डी देने वाला काम बड़ा खराब है। एक ही रोक चास कोई तरीका सोचो कि डोगरा डोगरे की नहीं गिरा, डोगरा बल्कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ तू दौड़ मेरे ने कर कंपटीशन में भी दौड़ना, तुम ही दौड़ दिखने। दो आगे निकली आंगन, एक फर्स्ट हो गई, एक सेकंड हो, बाकी तेरे ही आंगन पीछे। पर नहीं, बाकी निकली आते हैं अस अपने ही गिराई आने। पॉलिटिक्स के कराने हैं, चाहे लाल सिंह है चाहे फलाना, खत्म करी उड़े अपू ऐसे थे। पोलिटिकली कुत्थे हैं अस जम्मू वाले, टोटली फिनिश्ड। क्यों? ਅਸੀਂ नहीं समझी सके पॉलिटिक्स। ये मेरी दुख होता है। I feel that we should help each other anywhere and everywhere. Look at in our Doras are dying. Whether in the armed forces, they are number one, and uh,
I don't think any other community has got so many awards in the whole country जितने डोगरास दे न आर्मी दे होन खेलने दे होन नंबर 1 इज डोगरास भाएं वो बाहर होन सिविल च होन डॉक्टर होन दे आर डूइंग देयर बेस्ट बट ओनली when it comes Dogra versus Dogra, Dogra to Dogra, we are not with our एक चेंज करने जिन्ने चिर नहीं हुई है साढ़े जो चेंज असें कामयाब नहीं होना ओनली वन रिक्वेस्ट Dogras should not finish the other Dogra. Encourage him. That's all. वेरी वेल सर, वेरी वेल। बहुत बहुत नहीं सर, ये आपके जितने भी आज एनेक्डोट्स और जितने भी आपने अपने पर्सनल जो आपने बताया सर, आई थिंक जितने भी इस टाइम पे कम्युनिटी के यूथ हैं सर, they will really enlightened with this. And sir, thanks for giving your valuable time. और आप सर, हम सबको यही कहते हैं सर कि इस एज में भी सर इज मच मोर एनर्जेटिक, मच मोर स्मार्टर, तभी वो हमारे डोगरा आइकन भी हैं। एंड कीप ऑन गाइडिंग अस सर, एंड वी ऑलवेज wish that you keep on blessing as a elder of Dogra community, and keep on blessing the society, community, and all of us, sir. Thanks a lot for your valuable time, sir. Thank you very much, sir. On the behalf of entire team of तवी टेल्स, आपको फिर से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो बातें सुनने को मिली साक्षात, जैसे मुझे तो वही महसूस हुआ जैसे हम गीता का प्रवचन चल रहा हो जैसे कुरुक्षेत्र में। तो आज हमने डोगरों की गीता सुनी आपके प्रमुख मुख से, मुख अरविंद से, भगवान कृष्ण के मुख अरविंद से गीता निकली थी। तो जो डोगरों की गाथा थी वो आज आपके मुख से हमने साक्षात सुनी है, हम इसके साक्षी बने हैं। तो हम भी अपने आप को बहुत कृतज्ञ समझते हैं। और आपका इतना समय सर, इस समय निकालने के लिए इस स्टेज पे इतने एंथुसियाज्म के साथ पूरी बात करने के लिए, और डोगरों को एक और वेक अप कॉल देने के लिए, क्योंकि डोगरों को जागने की जरूरत है। जैसे एक हनुमान जी को जगाया था जामवंत जी ने, शक्तियां जिनकी वो भूल चुके थे। तो मुझे लगता है कि डोगरे भी अपनी शक्तियां भूल चुके हैं, हम क्या थे, हम क्या बन सकते हैं। तो आपकी ये बातें उनको जगाने में काम आएंगी जामवंत जी की तरह। और मुझे लगता है कि हम एक अच्छी तरह कोर्स करेक्शन करके डोगरों को वापस जनरल जोरावर सिंह और जो हमारा पुराना इतिहास है, जो महाराजा गुलाब सिंह का, उस महान पथ तक, गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें प्रेरित करें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय डुग्गर और जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू, आपने लाइफ वर्थ लिविंग कर दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सर। यू।